بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ میں اپنے سر کو دائیں بائیں ہلا رہی تھی۔ میرے چہرے پر کچھ بے چینی کے آثار تھے۔ آہستہ آہستہ قسمت آنے لگی اور یہ کوشش تھی کہ نیند سے جاگ جاؤں اور اپنی آنکھوں کو کھول کر دیکھوں کہ آخر کون تھا جس کی موجودگی مجھے نیند میں بھی محسوس ہو رہی تھی۔ کوئی انجانا لمس میرے چہرے پر سرکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کوئی میرے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیر رہا ہے۔ اس ہاتھ کا لمس کافی کھردرا سا معلوم ہو رہا تھا، ایسے جیسے کسی مخالف جنس کا ہو۔ مجھے عجیب لگ رہا تھا کہ آخر کون ہے جو مجھے چھو رہا تھا۔ وہ لمس بہت ہی آرام سے میرے چہرے پر اپنے ہاتھ کا لمس چھوڑتے ہوئے میرے چہرے کے تمام نقوش کو محسوس کر رہا تھا، اور آخرکار اس کا ہاتھ میرے ہونٹوں کے عین نیچے موجود دل پر ٹھہر گیا۔ سب کچھ جیسے ساکت ہو گیا۔ اس لمس کی حرکت جو کہ میرے چہرے پر تھی، میرے دل کی دھڑکن خوف اور دہشت کے باعث بڑھ چکی تھی۔ میں اپنے ہاتھ ہلا ہلا کر اس انجان شخص کو جھٹکنا چاہتی تھی، لیکن ایسے لگ رہا تھا کہ کسی اندھے کی طاقت نے میرے ہاتھوں کو جکڑ رکھا ہے۔ میں نے اپنی ٹانگیں اور پاؤں ہلانا چاہے کہ کسی طرح سے اس ناگوار لمس سے جان چھڑاؤں، لیکن ٹانگوں کو ہلانے پر بھی ایسے محسوس ہوا کہ وہ بھی کسی طلسماتی طاقت پر اندھے کی پکڑ میں قید ہیں۔ ایسے معلوم ہوا کہ جیسے میرے پورے وجود کو کسی نے اپنی گرفت میں لیا ہو۔ میں اپنی جگہ سے ایک انچ بھی ہلنے کی روادار نہیں ہوں۔ میں بہت جھٹپٹائی اور ہلنے کی کوشش کی، لیکن ہر مرتبہ پہلے سے زیادہ مضبوط گرفت میں جکڑی جاتی۔ میں نے آنکھیں کھولنی چاہی کہ اس انجان اور بے تحاشا طاقتور شخص کو دیکھ سکوں جس نے ایک دم میرے پورے وجود کو جکڑا ہوا تھا۔ میرے چہرے پر اس کا خوف زدہ کر دینے والا ہاتھ بھی میں محسوس کر رہی تھی، جس سے میرے وجود میں ناگواری اور خوف و ہراس کی لہریں پھیل رہی تھی۔ بے بسی کا احساس مجھے اس لمحے شدت سے ہوا۔ قوت اور زور رکھنے کے باوجود مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ایک انگلی تک ہلا سکوں۔ اس لاچاری اور بے بسی کی انتہاؤں کو چھوتے آخرکار میری آنکھیں نمکین پانی سے بھرنے لگی۔ زاروں قطار میری آنکھوں سے آنسو بہہ کر تکیے میں جذب ہونے لگے۔ یہ آنسو بے آواز سے تھے جو کہ میری بے بسی اور تکلیف بیان کر رہے تھے۔ میں چلانا چاہتی تھی، لیکن گردن پر ایک اندیکھا پراسرار بوجھ محسوس کر کے آواز میرے اندر ہی دب کر رہ گئی۔ ذرا سی سرگوشی نما آواز بھی نہیں نکال پائی۔ بالآخر خاموشی سے روتے ہوئے میں نے دل میں اپنے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا کہ دل پر تو صرف اس واحد ذات اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہے۔ کوئی بھی خوف زدہ کر دینے والی اور پراسرار طاقتوں کی مالک مخلوق انسان کے دل پر قابو نہیں پا سکتی۔ وہ بس انسان کے وجود کو اپنے بس میں کر لیتی ہے اور اس کو نقصان دینے کا ارادہ کر لیتی ہے۔ ابھی میں روتے روتے اپنے اللہ سے فریاد کر رہی تھی کہ اچانک سے ایسے لگا جیسے وہ اندیکھی گرفت جو کہ میرے پورے وجود پر چھائی تھی، جس نے مجھ سے میرے ہلنے جلنے کی قوت چھین لی تھی، اور میں کچھ کر نہیں پا رہی تھی اس انجانے ہاتھ کے لمس کو اپنے چہرے کے ہر نقش پر سرکنے سے روک سکوں اور اس کا ہاتھ جھٹک سکوں۔ اب وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے مجھے ایسے لگا کہ میں آزاد ہو گئی تھی۔ ہاتھ ہلانے پر ایسے لگا کہ وہ اندھے کی پراسرار مخلوق جا چکی تھی۔ میرے آنسو وہ کام کر گئے جو کہ میں خود اپنے ہاتھ پیر کے اس پراسرار قید میں جکڑے جانے پر نہیں کر سکی۔ یکدم ایسے محسوس ہوا کہ جیسے میں نے کھلی سانس خارج کی ہو۔ میرے چہرے پر پسینے کے قطرے آ گئے اور تنفس بری طرح سے پھول چکا تھا۔ میری آنکھیں بند ہی تھی۔ ابھی میں نے ایک پرسکون سانس خارج کی ہی تھی کہ اچانک لگا جیسے کوئی مجھے آواز دے رہا ہے۔ میرا دماغ اس وقت معاف تھا، اس وجہ سے میں سمجھ ہی نہیں پائی کہ یہ آواز کس کی تھی۔ آہستہ آہستہ آواز قریب سے قریب آنے لگی۔ مجھے ایسے لگا کہ میں یہ آواز سن چکی ہوں۔ جب میں نے ابھی بھی آنکھیں نہیں کھولی تو اچانک ایسے لگا کہ کوئی مجھے جھنجھوڑ کر ہلا رہا ہے۔ ایسے لگا کہ کوئی طوفان آ گیا ہو۔ اچانک سے میں نے ایک جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھولی اور دیکھا تو امی میرے سر پر کھڑی مجھے گھورے جا رہی تھی۔ میں نہ سمجھی سے ان کو دیکھنے لگی۔ پھر آہستہ آہستہ جب دماغ بیدار ہونے لگا تو اچانک سے ذہن نے کام کرنا شروع کیا کہ میں خواب دیکھ رہی تھی، اور ابھی جو آواز مجھے دور کہیں سے سنائی دے رہی تھی وہ کسی اور کی نہیں تھی، امی کی تھی، جو مجھے صبح 7 بجے اٹھا رہی تھی کہ اٹھ جاؤ اور تیار ہو جاؤ، نہیں تو لیٹ ہو جاؤ گی۔
अचानक से मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी जो कि 7:15 का हिस्सा बता रही थी। एक ही जस्ट में मैं बिस्तर से उठी और बाथरूम का रुख किया। 5 मिनट में फ्रेश होकर बाहर आई और जल्दी जल्दी अपना बाया पहना और स्कार्फ सर पर रखकर नकाब करने लगी। अम्मी ने जब मुझे नकाब लगाते देखा तो कहा, नाश्ते के बाद कर लेना जल्दी से। मैंने अम्मी से कहा कि नहीं अम्मी, आज तो बहुत लेट हो गई हूँ, रास्ते में भी आधा घंटा लग जाना है, मज़ीद टाइम ज़ाया नहीं कर सकती। अपनी अम्मी को खुदा हाफिज़ कहकर मैं घर की दहलीज पार करके बाहर आ गई। मेरा रुख अपने घर से आधे घंटे की मुसाफत पर मौजूद एक मदरसे की जानिब था, जहाँ मैं बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाती थी। रोज़ाना मेरी आँख टाइम पर खुल जाती, लेकिन आज सुबह जल्दी नहीं उठ सकी, और वजह थी वो भयानक और दिल दहला देने वाला ख्वाब जो कि महज ख्वाब नहीं था, बल्कि ऐसे लग रहा था कि मैं हकीकी तौर पर किसी पुरस्रार मखलूक की कैद में जकड़ी हुई थी और वो मुझे मुकम्मल तौर पर अपने बस में करके मेरे चेहरे को छू रहा था। मुझे अच्छी तरह से याद था कि आखिर मैं बेबसी की आखिरी हद को छूते रो पड़ी, जिसको मैं अपने उस ख्वाब का हिस्सा समझ रही थी, लेकिन दर हकीकत मेरा तकिया मेरे खामोश आंसू से वाकई में तर हो चुका था। मेरी आंखों की नमी मेरे तकिए में जज़ब थी। सारा रास्ता मदरसे जाते हुए मेरे जहन में उसी का ख्वाब ख्याल था कि आखिर ऐसा ख्वाब मुझे क्यों आया? क्या ये किसी खौफनाक कैद की जानिब इशारा था? लेकिन मेरे पास इन सब सवालों का कोई जवाब नहीं था। इसी तरह आखिरकार मुख्तलिफ सोचों के ताने बाने बुनते हुए बिलाखिर मदरसा आ गया और मैं अपना अबाया संभालते ही मदरसे के गेट के अंदर कदम रखकर चली गई। मेरा नाम अनाया है और मैं अपनी माँ के साथ एक 2 मरला मकान में रहती हूँ। मेरे अब्बू की वफ़ात जब मैं 2 साल की थी तो हो गई। अम्मी ने अब्बू की वफ़ात का काफ़ी सदमा लिया, लेकिन फिर घर के हालात को देखते हुए और अपने साथ साथ मेरी जान को भी पालने के लिए उनको छोटा मोटा काम करना पड़ा। अम्मी ने आस पास के मोहल्ले के घरों में औरतों के कपड़े सिलाई करना शुरू कर दिए। उससे इतनी कमाई होती कि हमारे खाने पीने और घर के कुछ अखराजात बमुश्किल पूरे हो जाते। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि अम्मी मेरी तालीम मुकम्मल करवा सकती। उन्होंने मेरी दीनी तालीम पर तवज्जो दी और मुझे कुरान मजीद की तिलावत और उसकी तफसीर सिखाई थी। मैं दीनी तालीमात में काफ़ी काबिल हो गई और इस तरह वक्त गुजरता गया और मैं बड़ी होती गई। बिलोगत की उम्र तक पहुँचते ही मैं अबाया और नकाब पहनना शुरू कर चुकी थी। कुदरत ने मुझे पैदाइशी तौर पर बेतहाशा हुस्न से नवाजा था। मेरी आंखें इतनी गहरी थी, जो भी देखता उनमें खो जाता। मेरे चेहरे का हर नक्श मकनातीसी कशिश लिए हुए था। मेरी अम्मी को मेरे इस बेपनाह कुदरती हुस्न से खौफ आता। हम दोनों इस जालिम ज़माने में बिल्कुल अकेले थे। कोई भी मजबूत सहारा हमारे पास मौजूद नहीं था। उन्होंने इसी डर और खौफ की वजह से मुझे 14 साल की उम्र से ही पर्दा करने की ताकीद की थी, जिस पर मैंने फर्माबरदारी से अमल किया था, क्योंकि शऊर की उम्र में दाखिल होते ही मुझे अपने ऊपर लोगों की पड़ती हुई हर नज़र का महफूम समझ आने लगा था। कुछ तारीफ करते तो कुछ अपनी नज़रों में हसद, जलन और नज़रें बदलिए हुए होते। बहुत सारे लोगों की नज़रों में मैं अपने लिए हवस देखकर, नागवार लहर देखकर मैंने ज़माने की नज़रों से अपने चेहरे को नकाब की चादर में ढांप लिया, ताकि लोगों की गलीज नज़रों और नियतों से महफूज रह सकूं। अम्मी ने ख़ास ताकीद की थी कि बाहर जाते हुए और मदरसे में भी अपने आप को ढांप कर रखना। इस दुनिया में सिर्फ इंसानों की जानिब मायल नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला ने कुछ अनदेखी मखलूक भी इसी दुनिया में बनाई है, और वो सब भी हमारे बीच में ही पाए जाते हैं। हमें देख सकते हैं, मगर हम इंसान उनको देखने से कासिर हैं। वो अनदेखी पुरस्रार मखलूक अपने पास बेतहाशा ताकतें और जादुई कुव्वतें रखते हैं। जिस तरह से इंसानों में कुछ अच्छे और कुछ बुरे लोग हैं, इसी तरह जिन्नात और अनदेखी मखलूक में भी कई इकसाम पाई जाती हैं। उनमें कुछ मददगार होते हैं तो कुछ शरीर, कुछ अपने काम से काम रखने वाले होते हैं तो कुछ इंसानों पर आशिक हो जाने वाले। कुछ जिन्नात अगर इंसान पर आशिक हो जाएं तो वो उनको अपनी कैद में कर लेते हैं, फिर उनको सारी उम्र उनका कैदी बनकर ही गुजारना पड़ता है। कुछ ऐसे होते हैं जो इंसानों की जानिब माइल हो जाएं तो उनके साथ एक ऐसे मददगार साए की तरह होते हैं कि फिर किसी मुसीबत को उनके नज़दीक नहीं आने देते। उनका एहसास हर वक्त उनके इर्द गिर्द ही घूमता है। जो मैं बड़ी होती गई तो मैंने गौर किया कि अम्मी अब काफ़ी थकी थकी सी लगी थी।
और कपड़े सिलाई करने में उनकी मज़ीद हिम्मत नहीं होती थी। कमर और जोड़ों के दर्द की वजह से वो काफ़ी तकलीफ़ में होती। सारी रात जाग कर गुजारती। मैं अपनी ज़िंदगी में मौजूद एक वाहिद रिश्ते को इस कदर तकलीफ़ और दर्द सहते देखती, और बिलाखिर मेरी बर्दाश्त ख़त्म हुई और अम्मी को इस काम से मना किया। मुख्तलिफ़ जगहों पर अपनी कुछ सहेलियों से बात की कि अगर मेरी दीनी तालीम के हिसाब से मुझे कोई नौकरी मिल जाए तो मैं जल्द अज जल्द काम शुरू कर सकूं। शुक्र था अल्लाह का कि उसने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा और अपनी मदद भेज दी। हमारे घर से आधे ही घंटे के फासले पर एक दीनी मदरसा था, जहाँ पर कुरान की तालीमात देने के लिए उनको एक फीमेल उस्तानी की ज़रूरत थी जो कि बच्चों को कुरान पढ़ाना सिखा सके। मैंने जब सुना तो खुशी से अम्मी को बताया। वो भी मेरी उस नौकरी के लिए मान गई थी क्योंकि उनकी सेहत अब काफ़ी मुतासिर हो गई। मैंने कुछ ही दिनों में उस मदरसे में जाकर वहाँ की हेड से बात की जो कि एक बुज़ुर्ग खातून थी और काफ़ी सालों से उस मदरसे को बहुत अच्छे से चला रही थी। मुझे उनसे मिलकर वहाँ का माहौल देखकर काफ़ी इत्मीनान हुआ क्योंकि वो मेरे लिए काफ़ी महफूज जगह थी। वहाँ जिस तरफ मैंने बैठकर बच्चों को पढ़ाना होता वहाँ पर सिर्फ ख़वातीन हुआ करती, जबकि सहन की दूसरी तरफ मर्दों की दीनी मजलिस लगा करती। बीच में एक दीवार थी जिससे कोई भी आदमी उस तरफ देख नहीं सकता था। बीच में एक जालीदार खिड़की बनाई गई थी जहाँ से वहाँ से आने वाले किसी मर्द को मैं नज़र नहीं आ सकती थी, सिवाय वहाँ पर दर्स देने वाले एक आदमी के जो कभी उस तरफ नहीं देखता। उसका सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ दीन की इशाअत पर होता। मैं चूँकि वैसे भी पर्दा और नकाब करती थी, इस वजह से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था कि अगर कोई उस जानिब देख भी लेता। मैं अपना हिजाब किसी सूरत किसी के सामने नहीं हटाती थी, फिर चाहे वो वहाँ सहन में मौजूद बच्चे ही क्यों ना होते। ये सारी बातें मुझे वहाँ की हेड ने बताई थी क्योंकि वो बताना चाहती थी कि मैं आराम से अपना दर्स बच्चों को नकाब हटाकर भी दे सकती हूँ, लेकिन मुझे यह कतई नामंजूर था और ना ही उसमें कोई मसला था। मैं अपने हिजाब में ज़्यादा आरामदेह महसूस करती थी निस्बतन इसके कि मैं बेहिजाब होकर उनको कुरान की तिलावत सिखाती। मेरा उस दिन वहाँ मदरसे में पहला दिन था जो कि सब काम मैं सीखने में लग गया था। अगले दिन से बाकायदा दर्स देना शुरू करना था। मैं मदरसे के सहन में औरतों वाले हिस्से में बैठी थी और हेड खातून से कुछ बातचीत कर रही थी। अचानक से मर्दाना हिस्से से मुझे एक ऐसी आवाज़ आई जो कि बिल्कुल तिलस्माती कशिश लिए हुए थी। मैं बेइख्तियार होकर उस आदमी की आवाज़ सुनती गई। ऐसे लगा कि वह आवाज़ किसी इंसान की नहीं थी। उसमें एक ऐसा जादू था कि मैं साकित होकर एक ही जगह पर सेटल होकर बैठी रही। मेरे अंदर हिलने की ताकत ख़त्म हो गई हो जैसे। मैंने बहुत लोगों को ऐसा दर्स देते सुना था, मगर ये आवाज़ सबसे जुदा थी। मेरे सामने बैठी वो बुज़ुर्ग खातून मुझसे कुछ बोल रही थी, लेकिन मेरा दिमाग तो उस आवाज़ के सहर में जकड़ा हुआ था। मैं एक ही जगह पर देखती थी और कोई हरकत नहीं की। ज़ुबान मेरी जैसे तालू से चिपक गई। अचानक उस बुज़ुर्ग खातून की मुझ पर नज़र पड़ी तो मुझे बाजू से पकड़कर हिलाया। मैं एकदम से जैसे होश में आई। ऐसे लगा जैसे मैं किसी ख्वाब से जागी हूँ। मैंने उसी सहरज़दा कैफियत में उस खातून से पूछा कि ये आवाज़ किस आदमी की है। उन्होंने मुझे बताया कि ये आवाज़ वहाँ पर आने वाले मर्दों को दिए जाने वाले दर्स देने वाले की है, जो कि यहाँ इस मदरसे में बहुत कम उम्र में आया था और अब 30 साल का हो चुका है। इसकी आवाज़ बहुत कम उम्र से ही एक जादू लिए हुए है। इसको बहुत शौक़ था कुरान हिफ्ज़ करे और दीनी तालीमात हासिल करके लोगों को भी बताए और सिखाए। हमारे इस मदरसे ने इस होनहार और कीमती तालिब इल्म की एक तलस्माती आवाज़ और कशिश रखने वाले तालिब इल्म को दिल से कबूल किया। अब ये 10 सालों से यहीं पर है। उस बुज़ुर्ग खातून की आवाज़ उस आदमी के बारे में बताते हुए कुछ भारी हो गई। मुझे कुछ अजीब लगा क्योंकि वो इतनी देर से बिल्कुल आहिस्ता आवाज़ में बात कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसका जिक्र आया तो न जाने उसे क्या हुआ कि उनकी आवाज़ एकदम भारी हो गई। ऐसे लगा कि कोई मर्दाना आवाज़ हो। पहले तो मैंने डर कर इधर उधर देखा कि शायद कोई और बोल रहा हो, लेकिन उस खातून के लबों की हरकत बता रही थी कि वो बोल तो वही रही थी, लेकिन आवाज़ उनकी अचानक से बदल गई। अभी मैं इसी घबराहट में बैठी थी कि अचानक से उस खातून ने खांसी की और एक हल्का सा झटका लगा, जिसके बाद उनकी आवाज़ दोबारा से पहले जैसी हो गई। मैं हैरान परेशान होकर उनको देखती रही कि ये सब कुछ कैसे हुआ।
ابھی چند منٹ پہلے ان کی آواز میں مردانہ لہجہ شامل ہو گیا تھا اور پلک جھپکتے ہی ان کی آواز پھر سے وہی پرانی ہو گئی۔ انہوں نے پراسرار طور پر مجھ پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ آخر کیوں ان کی آواز بدل گئی تھی۔ میں خوف کے ساتھ ان کو دیکھتی رہی اور پھر آرام سے اٹھ کر ان سے الوداعی مصافحہ کیا اور گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ سارا راستہ اسی عجیب کشمکش میں چلتی ہوئی آ رہی تھی کہ نہ جانے کیا معاملہ تھا۔ ایک خیال میرے ذہن میں آیا کہ کہیں مدرسے میں کوئی آصف وغیرہ تو نہیں ہے جس نے اس خاتون کے اندر گھس کر اس کی آواز پر اپنا قبضہ کر لیا ہو اور اپنی پراسرار آواز میں مجھ سے بات کی ہو۔ فوراً ہی اپنے خیال کی نفی کی میں نے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک دینی مدرسہ تھا، وہاں پر آصف اور کالے سایوں کا بھلا کیا کام؟ وہاں تو اللہ کا کلام پڑھا جاتا تھا۔ ایسی بڑی طاقتیں وہاں نہیں آ سکتی تھی۔ اپنے ذہن اور دماغ کو ان خوفناک سوچوں سے آزاد کرتی میں گھر آ گئی۔ گھر پہنچی تو امی میرا انتظار کر رہی تھی۔ ان کو سلام کر کے عبایا اتارا اور کمرے میں فریش ہونے چلی گئی۔ میں نے امی کو سارے دن کا احوال بتایا اور ساتھ کھانا کھانے لگی۔ امی کو میں نے وہاں اس عورت کی آواز جو کہ پراسرار طور پر مردانہ آواز جیسی ہو گئی تھی دانستہ طور پر نہیں بتایا، کیونکہ وہ پھر شاید مجھے اس مدرسے میں کام کی اجازت نہ دیتی، کیونکہ اس مدرسے میں اگر کسی کا سایہ ہوتا تو یہ ایک خوف اور دہشت کی بات تھی۔ بہت سے ایسے کالے سائے لوگوں کو تنگ کر کے ان کی زندگی کو بیانہ خواب بنا دیتے، لہٰذا میں نے خاموش رہنے میں عافیت جانی۔ کھانا وغیرہ کھا کر میں اپنے کمرے میں آ گئی اور کچھ دیر آرام کی غرض سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ آنکھیں بند کرتی میرے ذہن میں اچانک سے وہ طلسماتی آواز آئی۔ وہ آواز ایسی تھی کہ آنکھیں بند کرتے ہوئے بھی مجھ پر اپنا سحر طاری کر رہی تھی۔ میرے ذہن و خیال پر نقش ہو کر رہ گئی۔ میں نے سر جھٹک کر اپنا خیال سونے کی جانب لگایا اور آنکھیں بند کی تاکہ کچھ دیر سو سکوں۔ پھر کچھ ہی دیر میں نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ شام کا وقت ہو رہا تھا۔ مجھے افسوس ہوا کہ میں اتنی دیر تک کیسے سوتی رہ گئی۔ جلدی سے اٹھی اور وضو کر کے مغرب کی نماز ادا کی۔ باہر آئی تو امی صحن میں چارپائی پر بیٹھی کسی غیر مرئی نقطے پر دیکھ رہی تھی۔ ایسے لگتا کہ جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہوں۔ میرے قدموں کی آہٹ سے بھی وہ میری جانب متوجہ نہیں ہوئی۔ اچانک سے میں نے ان کے گلے میں بازو ڈالے تو ایک دم خوف کی وجہ سے وہ ہوش میں آئی اور مجھے ایک دم گھبرا کر دیکھا۔ ان کا چہرہ خوف کی وجہ سے پیلا زرد ہو گیا۔ میں نے باقاعدہ ان کو کانپتے ہوئے دیکھا۔ مجھے تشویش ہوئی کہ آخر امی کو کیا ہوا ہے۔ میں ان کے سامنے بیٹھی ان کے دونوں ہاتھ تھامے اپنے ساتھ ہونے کا یقین دلا رہی تھی۔ میں نے اپنی امی سے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ اتنی خوف زدہ ہو کر رہ گئی ہیں۔ امی نے مجھے پہلے تو ٹالا اور کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ میرا وہم ہوگا، لیکن میں کسی صورت نہیں مانی اور اصرار کیا کہ مجھے بتائیں۔ امی نے ایک لمبی سانس خارج کی اور مجھے بتایا کہ انہوں نے دن کے وقت لیٹ کر کچھ دیر آرام کیا تھا اور مجھے نیند آ گئی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا کہ آگے بولے۔ امی نے کہا کہ انہوں نے نیند کے عالم میں خواب میں دیکھا کہ میں مدرسے جاتی جا رہی ہوں اور میرے پیچھے ایک سایہ چل رہا ہوتا ہے۔ وہ سایہ کالے رنگ کا ہوتا ہے اور میں جس طرف مڑتی ہوں وہ سایہ میرے پیچھے اسی طرف چلا جاتا ہے۔ میں اس کا اپنا پیچھا کرنے سے خوف زدہ ہو جاتی ہوں اور سمجھ نہیں پاتی کہ کیا کروں۔ اس کے فوراً بعد امی کی آنکھ کھل گئی۔ امی کا کہنا تھا کہ انہوں نے جب شعلے اور یہ بیانہ خواب دیکھا تو وہ بہت خوف زدہ ہو کر رہ گئی، کیونکہ ان کو شک تھا کہ کہیں میرے اوپر کوئی ایسی مصیبت اور طوفان نہ آ جائے جو میری زندگی برباد کر کے رکھ دے۔ امی کو مختلف قسم کے وسوسے آ رہے تھے۔ میں امی کی بات سن کر ان کا خیال اس خوف زدہ کر دینے والے خواب سے ہٹانے لگی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں پہلی دفعہ اس طرح کام کرنے گھر سے باہر اکیلی نکلی تھی، تو آپ کو اسی وجہ سے مختلف قسم کے خوف آتے ہوں گے، خواب آتے ہوں گے، اور یہ خواب بھی اسی وجہ سے آیا ہوگا۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے امی کہ کسی شیطان نے دل میں وسوسہ ڈال دیا تھا، یا شاید امی ابھی تک اسی خواب کے زیر اثر تھی، اسی وجہ سے وہ اتنی مطمئن تو نہیں ہوئی تھی۔ مگر میری باتوں سے کچھ حد تک پرسکون ضرور ہو گئی۔ ان کے چہرے کی رنگت دوبارہ نارمل ہوتی، یہ دیکھتے ہوئے مجھے بھی دل میں سکون آیا اور میں اور امی وہیں کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ پھر اسی طرح کچھ دیر رات کا وقت ہو گیا تھا اور کچھ ہی دیر میں ہم لوگ کھانا وغیرہ کھا کر سونے کے لیے لیٹ گئے۔ امی کو ان کے کمرے میں لٹا کر میں اپنے کمرے میں آئی تو میری نظر اپنے کمرے کی کھڑکی پر پڑی جو کہ کھلی ہوئی تھی اور اس میں سے چاند کی روشنی چھن کر آ رہی تھی۔
और उसमें से चांद की रोशनी छन कर आ रही थी। मैं उसके करीब गई तो बाहर हर तरफ सन्नाटा था। हर कोई अपने घर में उस वक्त सोने के लिए लेट चुका था। मैंने सर पर दुपट्टा लिया हुआ था और चूंकि मैं खिड़की के सामने खड़ी थी जिससे आस पास के घरों और गलियों में घर आसानी से दिखाई दे सकते थे, तो बेपर्दगी होने के डर से मैंने अपने चेहरे के आगे दुपट्टा किया हुआ था, जिससे मेरा चेहरा नकाब में छुप गया। बाहर से कुत्तों के भौंकने की अचानक खौफजदा कर देने वाली आवाज़ आई तो मैंने अचानक से खिड़की के पट बंद कर दिए और उसके आगे पर्दे बराबर कर दिए। बेसाख्ता उन कुत्तों के भौंकने की आवाज़ों से मेरे दिल की धड़कन खौफ की वजह से तेज़ हो गई। अक्सर ही रात को कुत्तों की आवाज़ आती थी, लेकिन न जाने आज क्यों मैं इस कदर डर गई। आयतुल कुर्सी पढ़कर कमरे के हर तरफ फूंकी और आकर सोने के लिए लेट गई। आंखें बंद करते ही कुछ लम्हों बाद नींद की वादियों में चली गई। अगली सुबह मैं चूँकि अलार्म लगाकर सोई थी, इसी वजह से मेरी वक्त पर 7 बजे ही आंख खुल गई। मैं जल्दी से उठी और बाथरूम जाकर फ्रेश हुई और कपड़े तब्दील करके बाहर निकलकर अबाया पहना। अम्मी बाहर नाश्ता बना रही थी जिसकी खुशबू अंदर मेरे कमरे तक आ रही थी। मैंने 10 मिनट के अंदर अंदर तैयार होकर बाहर का रुख किया और अम्मी के साथ ज़मीन पर बिछे दस्तरखान पर बैठ गई। कुछ ही देर में नाश्ता किया और अम्मी की दुआएं लेते घर से बाहर चली गई। रास्ते में आज मेरे चलने की रफ्तार तेज़ ही थी क्योंकि आज बाकायदा मदरसे में मेरा पहला दिन था, तो मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी कोताही हो। मैंने सारा रास्ता अम्मी की नसीहत के मुताबिक आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए गुजारी। आधा घंटा पैदल सफ़र करते हुए मैं थक गई थी, लेकिन मजबूरी थी कि मुझे काम करना था और रिक्शे में सवार होने के लिए इतने पैसे नहीं थे मेरे पास। बिलाखिर आधे घंटे की मुसाफत के बाद मदरसे का दाखिली दरवाज़ा आया। वहाँ के दरवाजे तक पहुँचने के लिए 3 सीढ़ियाँ बनाई गई थी। अभी मैंने पहली सीढ़ी पर पैर रखा ही था कि अचानक से मेरे साथ ही किसी दूसरे इंसान का पैर भी रखा गया। मैं चूँकि नीचे देखकर चल रही थी, इसलिए उसी वक्त अंदाज़ा हुआ कि वो किसी आदमी का पैर था। मैं एकदम पीछे होने लगी कि अचानक उसी आदमी ने मुझसे कहा कि आप तशरीफ़ ले जाएं मोहतरमा। ये आवाज़ जब मैंने सुनी तो झटके से सर उठाकर उस आदमी को देखा जिसकी आंखों का रंग सब्ज़ था। वो सब्ज़ रंग वाकई काफ़ी मुनफरिद था। मैंने आज तक किसी की आंखों का ऐसा सब्ज़ रंग नहीं देखा था। उसका कद भी काफ़ी ऊंचा था कि एक मर्तबा मुझे देखने के लिए अपना सर काफ़ी ऊंचा करना पड़ता। मैंने उस आदमी की आंखों में एक से ज़्यादा बार नहीं देखा क्योंकि ये मेरी तरबियत में नहीं था कि मैं किसी नामहरम मर्द के साथ गुफ्तगू करती और नज़र मिलाती। मैंने अपनी आंखें झुका ली और जल्दी से अपना अबाया संभालती शुक्रिया कहती अंदर की जानिब बढ़ गई। मैं अंदर आते वक्त उस आवाज़ का मवाजना कर रही थी कि कहाँ सुनी मैंने ये आवाज़ कि अचानक मेरे जहन में एक झमाका सा हुआ कि ये तो वही तलसमाती आवाज़ वाला इंसान था जो मर्दान खाने में दर्स दिया करता है। लेकिन वो आदमी मुझे कहीं से भी 30 बरस का नहीं लगा, बल्कि उससे कुछ कम उम्र मालूम होता था। खैर, मुझे उसकी उम्र से क्या लेना देना। मैं अंदर आई तो औरतों वाली साइड पर पहले बहुत सारे बच्चे बैठे थे। उनके हाथों में कुरान का एक नुस्खा था। मेरे बैठते ही उन्होंने सलाम किया। मैंने उन सब बच्चों को बुलंद आवाज़ में जवाब दिया और फिर उनको सबक पढ़ाने लगी। उनको कुछ आयत तिलावत करके दी। अब मैं आराम से बैठी हुई इधर उधर देख रही थी और साथ में तस्बीह पढ़ रही थी। गैर इरादी तौर पर मेरी नज़र बीच में लगी एक दीवार में मौजूद उस जालीदार खिड़की पर गई जिससे उस तरफ का मंजर नज़र आता था। मैंने देखा कि वहाँ पर एक ऊंची सी कुर्सी थी जिस पर कोई नहीं बैठा था। शायद अभी तक कोई मुअल्लिम नहीं आया था और ना ही कोई आदमी। खैर, मैंने अपना जहन बच्चों की तरफ लगाया और उनके साथ इस्लाह करती जाती। वह सब बच्चे मेरे पढ़ाने के अंदाज से काफ़ी खुश थे क्योंकि मैं उन पर सख्ती भी इतनी नहीं करती थी और उन पर ना ही बेतहाशा नरमी बरती थी। मेरा मुतवज़्ज़न लबो लहजा उन बच्चों को मेरे साथ पढ़ने में मददगार साबित कर रहा था। अचानक से मेरी नज़र सहन में लगे पर्दों पर गई जो कि हवा के दोष पर लहराए थे। मैं समझी कि बाहर हवा चल रही थी। कुछ ही देर में उस हवा की वजह से मेरा स्कार्फ हवा से हिलने लगा। मैंने कसकर उस नकाब को पकड़ लिया ताकि मेरा नकाब ना हट सके। कुछ देर में आहिस्ता आहिस्ता वो हवा खुद कम होती गई और मैं पुरसुकून होकर बैठ गई। अभी मैं बच्चों को कुछ मज़ीद आयतें पढ़ाने का कह रही थी
और फारिग हुई तो अचानक मेरी नज़र गैर इरादी तौर पर उस जालीदार खिड़की के उस पार गई और साकत रह गई, क्योंकि अब उस ऊंची कुर्सी पर वही आदमी बैठा हुआ था जो कि मुझे बाहर दाखिली दरवाजे की सीढ़ी पर मिला था और जिसकी आवाज़ के जादू ने पहली दफ़ा मुझे ऐसा शल कर दिया कि मैं कोई भी हरकत करने से कासिर थी। मेरी आंखें अभी उसको दोबारा देखते हुए साकत हो गई, लेकिन इस मर्तबा आवाज़ से सहर की वजह से नहीं, बल्कि उसकी आंखों में अया होते एक पुरस्रार तासुर से। उसकी नज़रें मेरे देखने के कुछ देर बाद मेरी जानिब उठी, लेकिन ऐसे लगा कि उसकी आंखों में आग लग गई हो और उनसे शोले फूटने लगे हों। हालांकि पहली मर्तबा जब मैंने उस आदमी को देखा तो उसकी आंखें मुझे कुछ मुख्तलिफ किस्म की सब्ज़ मालूम हुई, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उनमें दहकती आग जल रही हो। मुझे खौफ के बायस एक झुरझुरी सी आई और मैंने दिल में शुक्र अदा किया कि मैंने नकाब ओढ़ रखा था, वरना उस आदमी की निगाहों में बेतहाशा खौफ था। उसके बाद मैं अपनी तवज्जो बच्चों से बिल्कुल नहीं हटा रही थी और भूल कर भी उस खिड़की की जानिब नहीं देखा, क्योंकि मेरा दिल खौफ से बंद होने को था। उसके कुछ देर बाद आदमियों की महफिल बर्खास्त हुई, जिसके बाद मैं कुछ पुरसकून हुई, क्योंकि वो आदमी वहाँ से जा चुका था। कुछ देर बाद तिलावत का वक्त ख़त्म हुआ तो कुछ शोर सा हुआ, बहुत सी आवाज़ें बाहर से आ रही थी। मैं कुछ परेशान होकर उस हेड खातून के पास गई कि आखिर क्या माजरा था। उन्होंने मुझे बताया कि आज किसी नेक दिल इंसान ने मदरसे के बच्चों के लिए चावल और चाय का एहतमाम किया है, जिसको अब सब लोगों में बांटा जा रहा था। मैंने इस बात में सर हिलाया और उसी जगह बैठकर इंतज़ार करने लगी, क्योंकि उनका कहना था कि यहाँ के सब उस्तादों को भी दिया जाएगा और वो लोग चाहें तो अपने साथ घर लेकर जा सकते हैं। मैं एक तरफ बैठी थी, क्योंकि मैंने कहा था कि चावल मैं घर लेकर जाऊंगी, जबकि चाय यहीं पी लूँगी। सारे बच्चों को चावल और चाय मिलती जा रही थी, जिसको वो खुशी से खा रहे थे। पूरे सहन में एक शोर सा था। एक लड़की मेरे लिए हाथ में चाय का कप और साथ में पैक किए हुए डब्बे में चावल ला रही थी। मैंने उससे लेना चाहा कि अचानक किसी बच्चे के हाथ से नादानिस्तगी में धक्का लगा और वो चाय का कप मेरे चेहरे पर छलक गया। सख्त किस्म की गर्म चाय अचानक से मेरे मुंह पर गिरने से मुझे शदीद जलन हुई। मैं नकाब हटाकर मुंह पर पानी डालना चाहती थी ताकि मुझे आराम मिल सके, लेकिन इस तरह सहन में हटाना मुझे मुनासिब नहीं लगा। वो लड़की जिसके हाथ से गलती से चाय छलकी थी मुझ पर काफ़ी शर्मिंदा दिखाई दे रही थी। मैंने उससे कहा कि मुझे किसी कमरे का बता दो ताकि मैं जाकर अपना चेहरा साफ कर सकूं। उसने मुझे अपने साथ आने का कहा, लेकिन अचानक से उसको किसी ने काम के हवाले से आवाज़ दी तो उसको मजबूरन जाना पड़ा। लेकिन जाने से पहले उसने मुझे बताया कि सहन के सामने मौजूद छोटी सी राहदारी थी, जिसमें जाते ही दाएं हाथ के कमरे में चली जाऊं। वो खाली था। मैंने इस बात में सर हिलाया और अपना बाया संभाल कर उसकी जानिब कदम बढ़ाए। जलन से बुरा हाल था। जल्द अज जल्द कमरे में जाकर स्कार्फ और नकाब हटाना चाहती थी। मैं राहदारी में पहुंची तो अचानक से कंफ्यूज होकर वहां बने 2 कमरे देखे। मुझे भूल गया कि उस लड़की ने दाएं जानिब के कमरे का कहा था या बाएं जानिब के कमरे में जाने का। आखिर मैंने बाएं कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खोला और अंदर दाखिल हुई। कमरे में अंधेरा था। मैंने पहले हाथ दीवार पर मारकर लाइट जलानी चाहिए तो एक हल्के रंग की डिम लाइट लग गई। उस रोशनी में मुझे एक तरफ बड़ा शीशा नजर आया जो कि दीवार पर लगा था और काफ़ी बड़ा था। मैंने उसके सामने खड़े होकर सबसे पहले अपना नकाब हटाया और फिर सर से स्कार्फ खोला। मुझे इस बात का इत्मीनान था कि मैं कमरे का दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद कर चुकी हूँ और इस कमरे में कोई था भी नहीं, तो इसी वजह से मुतमईन होकर अपना नकाब और स्कार्फ हटाया, जिसके हटते ही मेरा चेहरा आया हो गया और बाल एक झटके से खुलकर आबशार की मानित कमर पर फैलते चले गए। मैंने जल्दी से ही अपने स्कार्फ से ही अपना चेहरा साफ किया और पास पड़ी पानी की बोतल खोलकर पानी के कुछ छींटे अपने चेहरे पर डाले। मेरा चेहरा कमरे में उस रोशनी में चांद की मानित दहक रहा था। ऊपर से पानी की शफाफ बूंदें उसको मज़ीद पुरकशिश बना गई। जब पानी से कुछ आराम आया तो सुकून से आंखें बंद की। एक लम्हे के लिए फिर से आंखें खोली। मेरा इरादा अब दोबारा से स्कार्फ लेकर जल्दी जल्दी यहाँ से जाने का था। शीशे में जब स्कार्फ पहनने के लिए नज़र दोबारा डाली तो साकित रह गई। मेरा चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मेरे हाथ से खौफ की वजह से स्कार्फ ज़मीन पर छूट कर गिर गया। मैं थर थर काँपने लगी। मेरे होंठ बाकायदा काँप रहे थे, जिनके ऐन नीचे मौजूद वो स्याह तिल भी लरज़ रहा था।
یہ نظارہ کسی کی بھی آواز سلب کر دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ تو پھر ایک نوجوان آدمی تھا، وہی آدمی جس کی آواز کے سحر میں پہلی بار ہی جکڑی گئی تھی۔ وہ یکٹک میرے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا، گویا میرے نقوش کو حفظ کر رہا ہو۔ اس کی آنکھیں اس وقت ڈم لائٹ میں آگ کی طرح دہک رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس نے ایک مرتبہ بھی پلک نہ جھپکائی ہو۔ میں خوف سے اس قدر شل ہو گئی کہ اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اتنی دیر سے بے حجاب ایک نامحرم آدمی کے سامنے یوں بے نقاب ہو کر کھڑی ہوں۔ ہوش تو تب اڑے جب اسی پراسرار نظروں والے آدمی کو اپنی جانب بڑھتا ہوا دیکھا۔ میں اچانک سے پیچھے مڑی اور براہ راست اس کو دیکھا تو اب تک وہ میرے کافی نزدیک آ گیا تھا۔ میں خوف سے سفید پڑتی شیشے سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اچانک سے وہ میری آنکھوں میں دیکھتا ہوا نیچے کی جانب جھکا۔ خوف سے میں نے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا، لیکن میری حیرت کی انتہا تب ہوئی جب اس نے میرا اسکارف اٹھا کر میرے سر پر اڑایا تھا۔ میں نے ڈر کے باعث لرزتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ 2 سیکنڈ بعد جب آنکھیں کھولی تو حیرت اور خوف سے میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، کیونکہ پورا کمرہ اب خالی تھا اور اس آدمی کا وہاں نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے پورا کمرہ گھوم کر دیکھا، ہر طرف نظر دوڑائی، لیکن کمرہ ایسا خالی تھا جیسے یہاں کوئی آیا ہی نہ ہو۔ مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب اور دل دہلا دینے والا لگا، کیونکہ کوئی بھی انسان 2 سیکنڈ کے اندر کیسے غائب ہو سکتا تھا۔ اور تو اور دروازہ بھی کمرے کا ویسے کہ ویسا بند تھا، کوئی آہٹ یا آواز نہیں آئی تھی۔ میں نے کانپتے ہوئے جلدی سے اسکارف لیا اور چہرے کے سامنے نقاب لیا اور لرزتی ٹانگوں کے ساتھ باہر کا رخ کیا۔ ابھی میں باہر نکلی تھی کہ کچھ ہی دیر بعد وہی لڑکی مجھے چاول کا ڈبہ دینے کے لیے کھڑی تھی۔ میں نے غائب دماغی کے عالم میں اسے وہ ڈبہ لیا اور گھر کی جانب روانہ ہوئی۔ میرے ماتھے پر خوف کے باعث پسینے کے ننھے قطرے آ گئے، ٹانگیں کانپنے لگی، عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ پہلا دکھ تو یہ تھا کہ ایک نامحرم کے سامنے بغیر حجاب اور بے نقاب ہوئی۔ دوسرا خوف یہ تھا کہ اچانک سے وہ کسی سائے کی طرح کیسے غائب ہو گیا۔ وہ منظر میری نظروں کے سامنے سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ سارا راستہ اسی خوف میں گزر گیا۔ گھر تک پہنچتے ہوئے میں نے اپنے آپ کو کافی حد تک کمپوز کیا اور اپنے چہرے پر ذرا سا بھی تاثر نہ لایا کہ میں حد سے زیادہ خوف زدہ ہوں، کیونکہ امی پہلے ہی میرے لیے پریشان رہتی تھی۔ اب میں ان کو آج ہوا واقعہ بتا کر مزید ڈرانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ پہلے بھی کافی مشکلوں سے ان کو اس خواب کے سچ ہو جانے کے خوف سے نکالا تھا۔ گھر پہنچنے پر گیٹ تک آتے ہی میں نے ایک لمبی سانس خارج کی اور گھنٹی بجائی۔ امی کچھ ہی دیر میں آ گئی تھی۔ گھر آ کر امی کو میں نے ایسا کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا جس کی وجہ سے وہ فکر مند ہوتی مجھے لے کر۔ میں نے ان سے وہ چاول لیے اور کمرے میں فریش ہونے کے لیے گئی۔ کچھ ہی دیر میں اب آیا اور کپڑے تبدیل کیے اور منہ ہاتھ دھونے کے لیے باہر آئی تو امی نے ہی کھانا لگایا ہوا تھا۔ ہم دونوں نے مل کر کھانا کھایا اور پھر ایک ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ میں امی کو مدرسے کے بچوں کے بارے میں بتانے لگی، جسے سن کر وہ ہولے سے مسکرا دی۔ اس طرح کچھ وقت گزار کر میں کمرے میں آ کر تھوڑی دیر آرام کرنے لیٹی۔ کمرے میں گھسی تو پنکھا لگانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن اچانک چھت کی طرف نظر گئی تو وہ پہلے سے ہی لگا ہوا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کیسے لگا ہوا تھا، کیونکہ میں نے تو باہر جاتے ہوئے اس کو بند کر دیا تھا۔ کچھ نہ سمجھ آنے پر کندھے اچکائے اور جا کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ بستر پر لیٹتے ہی مجھے تھکاوٹ کے باعث نیند آنے لگی۔ ابھی سوئی نہیں تھی کہ اچانک سے ٹک کی آواز آئی، جس کی وجہ سے میں نے ایک دم اپنی آنکھوں کو کھولا اور کمرے میں ادھر ادھر دیکھا تو اچانک نظر کھڑکی پر گئی جو کھلی ہوئی تھی اور ہوا کی وجہ سے ایسی آواز آئی تھی۔ میں اٹھی اور بیڈ سے جا کر کھڑکی بند کرنے لگی۔ بے ساختہ میری نظر کھڑکی پر بیٹھے ایک پرندے پر گئی جو بہت عجیب تھا۔ اس کا رنگ سفید تھا لیکن اس کی آنکھیں سبز رنگ کی تھی، جو کہ بہت حیرت انگیز طور پر اسی پراسرار آدمی سے ملتی تھی۔ وہ پرندہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے خوف کے باعث کھڑکی بند کرنی چاہی تو وہ پرندہ اڑ کر چلا گیا۔ وہ پرندہ ایسا تھا کہ میں اس کو کوئی نام نہیں دے سکی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ اس دنیا کا نہ ہو۔ اس کے پیر سیاہ تھے، پر سفید، جبکہ آنکھیں وہی پراسرار سبز رنگ۔ میں نے فوراً کھڑکی بند کی اور کچھ دیر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد اٹھی تو شام تقریباً ہونے والی تھی۔ باہر امی کے پاس گئی اور اسی طرح مختلف باتیں اور چھوٹے موٹے کام کرتے ہوئے رات کا وقت ہو گیا۔ رات کو وہی چاول کھائے ہم لوگوں نے۔
और फिर अम्मी को हस्बे मामूल उनके कमरे तक छोड़ कर आई, जिसके बाद अब मेरा रुख अपने कमरे की जानिब था। अपने कमरे में पहुंचकर लाइट जलाई तो देखा कि खिड़की खुली हुई थी। मुझे हैरत हुई कि कुछ देर पहले तो बंद की थी। फिर ख्याल आया कि शायद हवा की वजह से खुली हो। आगे बढ़कर मजबूती के साथ दोबारा से उसके पट बंद किए और चिटकी लगाई। सुकून का सांस खारिज करके मुड़ी ही थी कि अब बस सोने के लिए लेट जाऊंगी कि अचानक अपने बिस्तर पर उसी अजीब व गरीब से परिंदे को बैठा देखा। मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया। ये परिंदा यहाँ मेरे कमरे में और मेरे बिस्तर पर क्या कर रहा था और मुसलसल मुझे ही घूरे जा रहा था। उसकी सब्ज आंखें मुझे वैसे भी उस पुरस्रार आदमी की याद दिला रही थी, और अब ये परिंदा भी यूं अचानक मेरे कमरे में था। मैंने सोचा कि ये परिंदा ज़रूर उस खुली खिड़की से अंदर आया होगा। मुझे अचानक एहसास हुआ कि मेरे सर पर दुपट्टा नहीं था, वो गले में मौजूद था। उस परिंदे की पुरस्रार नज़रों में कुछ तो ऐसा था कि मैंने एक सेकंड में अपने सर पर दुपट्टा ओढ़ा। उसने दुपट्टे को मेरे सर पर देखा तो उड़कर जाकर ड्रेसिंग टेबल पर बैठ गया। बंद कमरे में अचानक से उस परिंदे के उड़ने की वजह से परों की आवाज़ फैल गई, जो कि मुझे खौफ में मुब्तला कर रही थी। मैंने अपने कमरे के दरवाजे को देखा जो कि बंद था। काश वो खुला होता तो शायद वो परिंदा उड़कर बाहर जा चुका होता, लेकिन खिड़की और दरवाज़ा दोनों ही बंद थे। मैंने आहिस्ता से पीछे मुड़कर खिड़की खोलनी चाहिए। अभी खिड़की खोलकर वापस पीछे मुड़ी ही थी कि एक दिलखराश चीख मेरे मुंह से निकली। लम्हे के 1000वें सेकंड में मैंने अपने मुंह पर दोनों हाथ रखे और अपनी चीखों का गला घोंट लिया। खौफ से मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं थर थर कांपने लगी और पीछे दीवार से चिपक कर खड़ी हो गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे सामने वही पुरस्रार आंखों वाला आदमी खड़ा था। वो कबूतर तो वहाँ मौजूद ही नहीं था। मेरा चेहरा खौफ की वजह से सफ़ेद पड़ चुका था। ये आदमी कैसे और कब यहाँ आया मुझे इल्म नहीं हो सका। अब तो मुझे पूरा यकीन हो चला था कि वो कोई इंसान हरगिज़ नहीं था, बल्कि पुरस्रार ताकतें रखने वाला एक जिन था, क्योंकि उसकी आंखें उस वक्त खौफनाक हद तक दहक रही थी। ऐसे लगता जैसे उनसे आग के शोले निकल रहे हों। उसकी वो दिल दहला देने वाली नज़रें मेरे चेहरे पर टिक गईं। मुझे खौफ के बायस सांस भी नहीं आ रहा था। मुझे सांस रोकते देखकर शायद उसे कुछ रहम आया, क्योंकि अब वो काफ़ी दूर होकर कमरे के कोने में खड़ा हो गया। उसकी नज़रें अब मुझसे हट गई थी और दूसरी जानिब देख रहा था। उसने आहिस्ता से बात का आगाज़ किया कि मेरा मकसद आपको खौफजदा करना हरगिज़ नहीं था। मैं तो खुद नहीं जानता कि क्यों यहाँ पर खिंचा चलाया। उसने मज़ीद कहा कि वो बस मेरे चेहरे पर मौजूद किसी मकनातीसी कशिश की वजह से इस तरफ खिंचा चलाया। उसकी ये बात सुनकर मैं कांपने लगी और इधर उधर देखकर अपना नकाब ढूंढने लगी। उसने मेरा खौफ देखते अचानक ही कहा कि घबराइए नहीं, मुझसे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। मैं इंसान नहीं हूँ जो रात के अंधेरे में एक जवान लड़की को अकेले पाकर नफ्स का गुलाम बन जाए। मैं एक जिनजाद हूँ जिसका मकसद इस दुनिया में सिर्फ अल्लाह के दीन को फैलाना है। मैं बेशक आपकी तरफ माइल हुआ था, लेकिन मेरा ईमान इतना मजबूत ज़रूर है कि कभी भी वो मुझे कोई गलत कदम उठाने नहीं देगा। मैं आपका एहतराम करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा। मेरा वादा है कि आपको मुझसे तो क्या किसी इंसान से भी कोई ख़तरा नहीं होगा। मैं साई की मानिंद आपके साथ हूँ। आपको एहसास भी नहीं होगा कि एक जिनजात की नज़रें हमेशा आप पर हैं। उसकी बातें सुनकर मेरे खौफ में इजाफा हो गया कि ये जिनजात मेरे साथ अब क्या हमेशा रहेगा। मुझे सांस नहीं आ रही थी। मैं लंबी लंबी सांस खींचने लगी। मैंने अपना रुख उस तरफ मोड़ा और बाहर की जानिब देखने लगी। ये सोचने लगी कि कैसे इस जिनजात से जान छुड़वा कर कहीं दूर छुप जाऊं। अब यही सब सोच रही थी कि अचानक से मैंने परों की आवाज़ पर ऊपर की जानिब देखा तो वो परिंदा मेरे सर के ऊपर से होकर खिड़की से निकल गया था। मैंने हरासा होकर एक ही जिस्त में खिड़की बंद की और इसी तरह दीवार से लगकर बैठ गई और ज़ारों कदार रोने लगी। मैं अपनी अम्मी को किसी सूरत इस सब खौफ में मुब्तला नहीं कर सकती थी। अब जो भी करना था मुझे ही करना था। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए अपने ऊपर फूंकी और पूरे कमरे पर भी फूंक कर लरजती टांगों के साथ आकर बेड पर बैठ गई। कुछ देर बाद जब खौफ कुछ हद तक कम हुआ तो बेड पर नींद दराज हो गई और आंखों को बंद कर दिया। लाइट मैंने कमरे की नहीं बुझाई थी, क्योंकि खौफ से मेरा पूरा वजूद लरज रहा था और उस जिन जात का दिल दहला देने वाला सरापा मेरी नज़रों के सामने घूम रहा था।
कुछ देर में उसी खौफ की कैफियत में नींद की वादियों में चली गई। अगला दिन बेदार हुआ तो मैं हस्बे मामूल जागी और तैयार होकर अबाया पहनकर घर से निकली। अम्मी पर मैंने कुछ भी ऐसा जाहिर नहीं होने दिया कि रात को मुझ पर कौन सी कयामत गुजर चुकी थी। एक दिल दहला देने वाला सच मुझ पर आश्कार हुआ था कि एक जिनजात का साया मेरे साथ हर वक्त है। मैं अम्मी की दुआओं के इशार में घर से रवाना हो गई। अभी कुछ ही रास्ता गुजरा था कि मुझे अपने पीछे कदमों की चाप महसूस हुई। मैं खौफ से कांप उठी। डर और खौफ की वजह से मैंने अपने कदमों में तेज़ी पैदा कर दी, लेकिन जितना मैं आगे बढ़ती जाती ऐसे लगता कि कोई और भी तेज़ी से मुझ तक पहुंचना चाह रहा है। मुझे लगा कि वही जिनजाद है जो अब मुझे मज़ीद डराकर हरासा कर रहा है। मैंने एक नज़र पीछे देखा तो आंखें बाहर को निकल आई। वो जिनजाद तो नहीं था, बल्कि दो लड़के थे जो कि शक्ल से आवारा और बदमाश मालूम हो रहे थे। उनके गले में बड़ी बड़ी चैन लटकी हुई थी और मुझे हवस भरी निगाहों से घूरते हुए मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। मैंने अल्लाह का नाम लिया और आगे की जानिब दौड़ लगा दी। उनमें से एक ने तेज़ आवाज़ में हाँक लगाई कि रुक जा छोकरी। मैंने उनकी किसी गलीज बात पर कान नहीं धरा और अपनी इज्जत बचाने की खातिर आगे दौड़ लगा दी। अभी कुछ कदम ही आगे बढ़ाए थे कि अचानक दिलखराश चीखें फिजा में गूंजी। मैंने एकदम रुक कर पीछे देखा तो हैरान रह गई कि वो दोनों अयाश लड़के ज़मीन पर गिरे हुए थे और अपनी हड्डियों को पकड़े कराह रहे थे, जबकि वो जिनजाद उन दोनों के करीब खड़ा उनको आग की मानिद आंखों से ही घूर रहा था। अचानक ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसने मुझे एक मबहम मुस्कुराहट पेश की। मैं हैरत से देखने लगी कि ये यहाँ कैसे आ गया। कुछ देर बाद मैं वापस आगे की जानिब मुड़ गई और मदरसे जाने लगी, लेकिन अब की बार मेरे दिल में एक इत्मीनान ज़रूर आया था कि वो जिनजाद मेरे हक़ में कभी नुकसान नहीं था। उसके बाद मैं पुरसुकून होकर मदरसे जाया करती। वो जिनजाद हमेशा मेरे साथ साए की मानिद होता, लेकिन मुझे कभी उससे खौफ नहीं आता। ज़िंदगी अब कुछ पुरसुकून हो गई थी और यूं ही गुजरने लगी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उर्दू रेडियो को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।